ठीक है, लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर सीरीज. सो वी वर डिस्कसिंग डबल एंगल फॉर्मूला, isn't it? और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर चुके हम जो हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन में वी हैव डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली, राइट? सो एनीवे, आज हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करेंगे एंड we shall discuss some difficult questions, mains level questions based on factorization formulae, double angle and triple angle, right? Before we move on to next concept, ठीक है? Okay. Triple angle formulae. Okay. First formula, sin 3 theta, right? Sin 3 theta. Sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ठीक है? इसमें फंडा है, देखो, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, है ना? sin 2 theta is 2 sin. sin 3 theta is 3 sin. ठीक है? That's how you remember. और ये क्यूब के साथ 4 होता है हमेशा, ठीक है? एंड सेकेंड वन, cos 3 theta. इसमें क्या है, इनका रिवर्स है, माने पहले क्यूब वाला टर्म आएगा 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा, राइट? एंड फाइनली tan 3 theta. So remember, just like sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, tan 2 theta 2 tan theta. Similarly, tan 3 theta is again 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, right? Okay. Let's quickly solve a question based on this. There's a nice question. Okay. Question number 1. If tan theta, so we're not going to solve some basic questions based on this, है ना? We'll be wasting our time. So let's quickly move on to difficult ones. ये already मेंस में आ चुका है. If tan theta plus pi by 3 plus tan theta minus pi by 3 is equal to k tan 3 theta. Then find the value of k. Okay. Let's see what we're going to do. Obviously, if you look at LHS, we have tan theta, जिसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन you see we have tan theta plus pi by 3. Clearly this is compound angle, and tan theta minus pi by 3, ये भी एक compound angle है, right? So obviously we're going to have to simplify LHS here. तो tan theta की जगह tan theta वैसे के वैसे, और यहाँ tan a plus b फॉर्मूला अप्लाई होगा. So tan a plus tan 60. Remember, pi by 3 stands for 60 degree. So tan 60 is root 3. So tan theta plus root 3 upon 1 minus tan a tan b root 3 tan theta. ठीक है? Directly plus tan a minus b tan b upon 1 plus tan a tan b, right? Isn't this what we get? Obviously there are 3 terms. We will take LCM. So LCM क्या रहेगा? Clearly इन दोनों का multiplication, and it's going to be common denominator. So 1 minus root 3 tan theta into 1 plus root 3 tan theta. अच्छा, न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना? दिस इनटू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, tan theta मल्टीप्लाइड बाय, आपने नोटिस किया ये a plus b a minus b के फॉर्म में है. लेट्स राइट दिस डायरेक्टली, a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर प्लस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, tan theta plus root 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus root 3 tan theta, ठीक है? प्लस
tan theta minus root 3 multiplied by this one minus root 3 tan theta. ठीक है, so denominator remains same 1 minus 3 tan square theta. ठीक है, ये देखो tan 3 theta का डिनोमिनेटर आ चुका है ऑलरेडी. लेट्स एक्सपैंड न्यूमरेटर. tan theta minus 3 tan cube theta plus, देखो we will get 4 terms here and 4 terms here. So tan theta plus root 3 into tan square theta, root 3 into 1 root 3 plus this into this 3 tan theta. और 4 टर्म्स आएंगे, इसको सिंप्लीफाई किया. tan theta into 1 tan theta minus root 3 into tan square theta minus root 3 minus into minus plus 3 tan square theta. ओके, सो अब आते हैं tan theta के कितने टर्म्स हैं ना. tan theta 2 tan theta 5 tan theta 6 tan theta. ठीक है, 6 tan theta. तो सारे tan theta के टर्म्स गए ऑलरेडी. अच्छा, अब आते हैं tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स. ये देखो प्लस रूट 3 का tan स्क्वायर थीटा और माइनस रूट 3 का tan स्क्वायर थीटा गेट्स कैंसिल एंड did we miss any term here? 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 गेट्स कैंसिल. अच्छा, ये tan क्यूब थीटा होना चाहिए, सॉरी माइनस इन दो. it should be plus 3 tan theta, sorry ये माइनस into माइनस प्लस रूट 3 into रूट 3 3 tan theta. इसका मतलब 3 tan theta 4 tan theta 7 tan theta 8 9 tan theta होना चाहिए. and moreover minus 3 tan cube theta, that's minus 3 tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. now just be careful है ना while expanding. clearly numerator से 3 कॉमन निकलेगा. 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. और आपने नोटिस किया ये tan 3 theta का फॉर्मूला है. so this is directly 3 tan 3 theta. और क्वेश्चन में ए दे रखा है this is equal to k tan 3 theta. so from comparison k should be equal to 3. right, okay, so what did we do basically? हमने LHS में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया. फिर बी केयरफुल बाय टेकिंग LCM here. so LCM would be तीनों का मल्टीप्लिकेशन. और इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा इसको. इसके नीचे ये है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे ये है तो इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, एंड देन बी केयरफुल व्हाइल एक्सपैंडिंग, देन सिंपलीफाई, तो आ गया k is equal to 3. ठीक है, so ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे दे हार्डली आस्क एनी क्वेश्चन, लेकिन इसका एक यूनिक वेरिएशन है. जैसे कि डबल एंगल फॉर्मूले, इफ यू लुक एट डबल एंगल फॉर्मूले वी हैव sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा. लेकिन उसमें दो डिराइव्ड रिजल्ट्स है. कौन से? 1 minus cos 2 थीटा और 1 plus cos 2 theta. those we apply a lot, है ना. similarly here also we have a variation of triple angle formula. in fact 2019 में एक क्वेश्चन आ चुका है उस वेरिएशन पे. देखते हैं. so 3 derived results based on triple angle formula. okay, ये derived results है ना. so 4. sin theta sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is equal to 1/4 sin 3 theta. Very interesting, very interesting. So we have sin theta, sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is 1/4 sin 3 theta. Okay, this is very interesting.
and we have a similar formula for cos. Cos का भी same है, ditto as it is. Cos theta, cos 60 minus theta, and cos 60 plus theta is 1/4 cos 3 theta. Is 1/4 cos 3 theta. Right? अब tan का आप गेस कर सकते हो इजीली. Tan का गेस कर सकते हैं. Pretty obvious. To get tan, what do we need to do? Divide, as simple as that. Also tan theta, tan 60 minus theta into tan 60 plus theta is, इसमें देखो 1/4 नहीं रहेगा तो ये डायरेक्टली tan 3 theta. Okay. So you know we gonna derive one of them. इसमें से एक derive करेंगे हम. ठीक है. कौन सा derive करेंगे? Say let's derive fourth. Right? Let's derive fourth. और fifth आप कर पाओगे at home. Right? Fifth and sixth I'd like you to try at home. Okay. Now obviously to prove fourth one कौन सा फॉर्मूला लगेगा? याद है हमने कल फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के बाद बिफोर वी इंट्रोड्यूस डबल एंगल फॉर्मूले हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किया था. रिमेंबर sin into sin a minus b, isn't it? So वो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ना. ठीक है. सो आज के दिन हम वो sin a plus b sin a minus b उसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. ओके. Anyway, let's derive fourth one. Fourth का proof. So before we do this, we do know कि sin a plus b into sin a minus b. Sin a plus b into sin a minus b is, remember ये एक एक्सेप्शन फॉर्मूला है. जनरली sin के जितने भी फॉर्मूलेस है उसमें एक sin एक cos होता है, लेकिन इसमें दोनों भी sin square a minus sin square b. ठीक है. Similarly, what about cos a plus b into cos a minus b? इसमें cos square a minus sin square b होता है. ठीक है. Okay, you don't have a change of mind. Instead of proving fourth, I'm gonna prove fifth. ठीक है. And moreover, it is also same as cos square b minus sin square a. It's up to you. Right? Okay. So I'm gonna prove fifth. Fourth easy है. Fourth आप easily कर पाओगे. Just apply sin a minus b sin a plus b. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट रिजल्ट दिख जाएगा. हम फिफ्थ करेंगे. ठीक है. तो cos थीटा ब्रैकेट में ये देखो cos a plus b cos a minus b. So let's apply formula cos square a minus sin square b. b यहाँ थीटा है. ठीक है. cos square a minus sin square b. अच्छा, आपने नोटिस किया आपको अपने को लाना है cos 3 थीटा, और cos 3 थीटा में देखो सारे cos के टर्म्स हैं, लेकिन आपने नोटिस किया यहाँ एक sin का टर्म आ रहा है, तो आपको फिर से इसको cos में कन्वर्ट करना होगा by replacing sin square theta by 1 minus cos square theta. To avoid this हम ये इसका जो सेकंड वर्जन है ये अप्लाई करेंगे, माने cos square b minus sin square a, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो cos square b minus sin square a. ठीक है. ये थोड़ा सा ट्रिकी था, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस. अच्छा, आप पहला वाला वर्जन भी अप्लाई कर सकते हो और बाद में sin square theta की जगह 1 minus cos square theta वो भी चलेगा. ओके. cos theta into cos square theta वैसे की वैसे sin 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4. ठीक है. तो cos को अंदर लेकर गया और एलसीएम, तो ये cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos theta upon 4, तो 1/4 cos क्यूब थीटा. ठीक है. आ गया. क्वाइट सिंपल. we just have to apply sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b. ठीक है. सो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे 4 to 5 क्वेश्चंस. राइट. ओके.
क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे प्रूव दैट क्वेश्चन है ना। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज 1/60। ये आएगा 2019 में। sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री is 1/60. Do that. Tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 is 3. Question number 4. Do that. Sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 is 3/60. Okay, I'd like you to try cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, tan 10, tan 30, tan 50, tan 70। ठीक है, सो ये कॉमन कॉम्बिनेशन है 10, 30, 50, 70 या 20, 40, 60, 80, राइट। Okay. आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक वी गोना सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस इन दिस। से वी गोना सॉल्व एक 20 वाला करेंगे और एक 10 वाला करेंगे, ठीक है। So how do we solve? Basically what we need to do is we just need to identify theta here, और बाकी एंगल्स जो है वो 60 के विद रिस्पेक्ट टू में होंगे। माने अगर मान लो अगर थीटा 20 होता, देखो cos के हिसाब से अगर थीटा 20 होता तो अपने पास क्या होना चाहिए? रिमेंबर अगर ये थीटा 20 होता सो अदर एंगल हैज टू बी 60 minus 20 40 एंड थर्ड एंगल हैज टू बी 60 plus 20 which is 80। तो अपने को ना ये एंगल्स चाहिए। डू वी हैव दोस एंगल्स हियर? यस। 20 cos थीटा, cos 60 minus थीटा, cos 60 plus थीटा, ठीक है। 1 2 3 ये तीनों पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, राइट। सो देयरफॉर इफ यू स्टार्ट विद एलएचएस हियर, सो रिमेंबर ये आपका थीटा है, ये आपका 60 माइनस थीटा है और ये आपका 60 प्लस थीटा है। सो 1 2 3 इसके जगह हम लिखेंगे 1/4 cos 3 times थीटा। रिमेंबर आपका थीटा 20 into cos 60। don't we actually know cos 60 की वैल्यू? cos 60 is 1/2। तो 1/4 of ये भी cos 60 है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। so answer is 1/60। ठीक है, pretty simple question। ये देखो ये 2019 मेंस में आता, आप इजीली कर सकते हो, isn't it? बस रिमेंबर आइडेंटिफाई थीटा आइडेंटिफाई करना है आपको। अगर मान लो थीटा 10 होता तो 60 माइनस थीटा 50, ये हो गया आपका 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा 70, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं, यू नो, आई लाइक टू ट्राई दिस क्वेश्चन। 10 वाला भी हो जाएगा, इजी है। ये 20 वाला आप कर सकते हैं। एक काम करेंगे हम, ये वाला करेंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, बाकी सब आप कर सकते हो इसमें से। लेट्स ट्राई 4। अच्छा, इसमें थीटा क्या रहेगा? अच्छा, इसमें भी सेम है ना। एक काम करेंगे, लेट्स नॉट ट्राई दिस, कौन सा टाइम वाला करेंगे? एक टाइम
Let's try this. So obviously ये आपका थीटा, ये आपका 60 माइनस थीटा और ये आपका 60 प्लस थीटा, राइट? सो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, इसका क्या फॉर्मूला है? tan 3 थीटा, tan 3 टाइम्स थीटा इज 10 इनटू बचेगा वापस tan 30. So tan 30 is 1 by root 3, tan 30 again 1 by root 3. So answer is 1 by. तो इसका आंसर should come out 1/1. शायद से इसका आएगा, इसका भी 3/16 आएगा शायद से. आ रहा है 3/16? ठीक है, ये देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग ट्रिकी अबाउट दीस क्वेश्चंस. अब आते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस पे, है ना? नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 7. cos 10 cos 40 cos 70, we need to prove that this is equal to root 3 by 8 into cot 40 degree. Interesting. Question number 8. Tan 6 degree, tan 42 degree, tan 66 degree, tan 78 degree is equal to. Very very interesting question. ये ऑलरेडी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, शायद से बिट्स में आता है, बिट्स पेपर में आता है. वेरी वेरी ओके. ऑब्वियसली यू सी, अगर थीटा 10 होता, इफ थीटा वेर 10, से रिमेंबर वी रिक्वायर 60 minus theta and 60 plus theta, isn't it? That means 60 minus 10, अपने को 50 चाहिए. We need 50 here, there is no 50, but we do have 60 plus 10. देखो ये वाला 60 plus theta. Okay. So you know, क्वेश्चन नंबर 7. तो अपने पास है cos 10 तो है, अपने को क्या चाहिए बेसिकली? cos क्या चाहिए अपने को? cos 60 minus 10 चाहिए, वो जो नहीं है. तो हम एक काम करेंगे, यू नो, अगर नहीं होता तो what do we do? We multiply and divide, isn't it? Let's consider cos 10, cos 60 minus 10, 50 into cos 60 plus 10, 70. So remember, आपने मल्टीप्लाई किया बाय cos 50, तो हम डिवाइड भी करेंगे. एंड मोर ओवर एक और टर्म था यहाँ, कौन सा? cos 40. तो cos 40 वैसे के वैसे लिख दिया मैंने, राइट? isn't it? Okay. Now you see, ये cos 10, cos 50, cos 70, ये अपना ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा, जिसका रहेगा 1/4. रिमेंबर ये आपका थीटा है, ये वाला 1/4 cos 3 into 10, 30 डिग्री into cos 40 वैसे की वैसे. लेकिन आपने नोटिस किया कि आरएचएस में cot है. cot का मतलब cos अपॉन sin. cos 40 तो है न्यूमरेटर में, आपको डिनोमिनेटर में चाहिए sin 40. बट रिमेंबर डिनोमिनेटर में cos 50 है. फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक cos 50 is same as sin 40, है ना? क्योंकि cos थीटा is sin 90 minus थीटा cos 40. तो ये 1/4 cos 30 is √3/2 और ये बन गया cot 40. So √3/8 into cot 40. Right? This was a nice question.
क्योंकि ये एक थीटा था अपने पास और 60 प्लस थीटा था, व्हाट वाज मिसिंग 60 माइनस थीटा, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही करेंगे, वी गोना डू द सेम इन क्वेश्चन नंबर 8। ओके, गिव इट अ ट्राई, आई गिव यू अ मिनट, और आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब आते हैं, अगर मान लो अगर आपका 6 डिग्री थीटा होता, अपने पास चाहिए 60 माइनस 6 54 नहीं है, 60 प्लस 6 66 है अपने पास, देखो 60 प्लस थीटा वाला है। अच्छा, तो एक काम करेंगे हम, tan 6 डिग्री, एंड रिमेंबर अपने को क्या चाहिए, tan 60 माइनस 6 54 चाहिए। रिमेंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हम डिवाइड भी करेंगे इनटू tan 60 प्लस 6 tan 66, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का। Now let's look at the other two, है ना, the other two are very interesting, very interesting. So should we consider theta as 42 here? Theta 42 रहेगा क्या? Generally आपने नोटिस किया theta is a smaller angle, usually some 10, 20, ऐसा छोटा एंगल होता है। लेकिन look at the angles, एक 42 है और दूसरा 78 है। So what I want you to do is, I would like you to compare these two 60 से compare करो। If you look at 78 जो है वो 60 से बड़ा है by how much 18 डिग्री, and if you look at 42 60 से छोटा है by how much 18 डिग्री अभी। अच्छा, इसका मतलब ये 60 प्लस 18 है और ये 60 माइनस 18 है, आ रहा समझ में? इसका मतलब ये 60 माइनस थीटा है, एक्चुअली दिस इज 60 माइनस से अल्फा, और ये 60 प्लस अल्फा, और आपका अल्फा है 18 डिग्री। इसका मतलब हम ओके या फिट होगा तो देखो, सो tan 18 डिग्री, tan 60 माइनस 18 42, tan 60 प्लस 18 78। देखो आपने मल्टीप्लाई किया बाय tan 18 तो अपने को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझो, नाउ इट इज प्रीटी ऑब्वियस, tan थीटा tan 60 माइनस tan 60 प्लस, डायरेक्टली tan 3 times 6 18 upon tan 54 into, similarly tan theta tan 60 minus theta tan 60 plus theta, this has to be tan 18 3s 54 upon tan 18, so सारे cancel, answer is 1, right। So now this was a nice question, very nice question, क्योंकि एक इसमें थीटा दे रखा है, एक इसमें थीटा इज मिसिंग, वी हैड टू फाइंड थीटा बाय कंपेयरिंग द गिवन एंगल्स टू 60। सो आई वुड से these are some nice questions। राइट, सो वी गोना स्टॉप हियर, और अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।